अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। आज हम आए हैं पत्तोकी के नवाही गांव बाईकोट में और टीम पुकारा अकेली नहीं आई है बल्कि एक ऐसी फैमिली को साथ लेकर आई है जो बाकायदा घर पर एक सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे थे कि छोटे भाई ने आकर गुसल खाने में नहाते हुए कबड्डी प्लेयर मोहम्मद आशिक को गोलियों से छलनी कर दिया। फैमिली मेरे साथ है, उनके घर जाएंगे और आपको तमाम सूरत हाल दिखाएंगे। आइए जी, मोहम्मद आशिक के घर पर मैं इस टाइम मौजूद हूँ। ज़ईफ़ वालिद और बूढ़ी माँ बैठी हुई है घर में, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी की हालत ठीक हो? ठीक है माँ जी, बेटे बेटे लड़ पे ने हाँ की जी। होया सी? कुछ भी ना पुत्र, वो बाहर सी हाँ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਦਾ ਇੱਥੇ ਢਾਈ ਗਿਆ ਤੇ ਨਲਕਾ ਫੱਟੀ ਗਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਘਰ ਕੋਈ ਜੀ ਨਹੀਂ। अच्छा हाँ हाँ ठीक है। तो ਘਰ माँ ਕੋਈ जी ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਲੜਕੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ? सही है, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। सही है। ਘਰ ਕੋਈ ਜੀ ਨਹੀਂ। अच्छा हाँ जी। नहीं, मैं कह रही हूँ ਤੁਹਾਡਾ बेटा फोत हो गया है ना? हाँ जी। कत्ल हो गया ਤੇ है। ਹੈ ਗੋਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਜੀ ਗਈਆਂ ਨੇ। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ है? ਲੈ ਦੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਸਾਡਾ ਜੰਮਿਆ ਬੇਟਾ ਸ਼ੇਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਟੁਰੇ ਫਿਰਨੇ। हाँ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਕੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਲੋਗ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। बाबा जी क्या हाल है, तबीयत नहीं ठीक? शुक्र है अल्लाह दा वीर ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ। बाबा जी की होया सी? ਬਸ ਇਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ। हाँ जी, जाहिर है बेटा है ना। ਬਸ਼ੀਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਸ਼ਰੀਫ ਆਪਦੇ ਘਰ अच्छा ਪਈ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣੀਏ ਦੁੱਖ ਚ ਕੋਈ ਅਟਵਟਾ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਤਗੜਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾ। बाबा जी ये पहले भी लड़ते सी आपस च? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਣੀ ਏਡੇ ਲੜਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। अच्छा ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ 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 ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੜੇ। अच्छा ਹਾਂਜੀ ਉਵੇਂ ਹੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਮਕਾਨ ਪਾ ਲਿਆ हाँ ਹੈ। सही है। ਨਾ ਮੋਇਆਂ ਚੋਂ ਨਾ ਜੀਂਦਿਆਂ ਚੋਂ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਬੇਟਾ ਮੋਇਆਂ ਚੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਂਦਿਆਂ ਚੋਂ। ਦੁੱਖ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ। हाँ ਹਾਂ तो माँ जी ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਥਾਣੇ ਹੈ ਨਾ? हाँ जी। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਸ਼ਕਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ नहीं भूलता आशिक प्या है जो, बेटा ਅਸੀਂ आशिक के 3 बच्चे हैं माँ जी। हाँ जी। आशिक को उनका बाप बच्चों को नहीं मिल सकता, बच्चे यतीम हो गए। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। प्यो नहीं लबना। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਰੋਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ। हाँ। मोहम्मद आशिक की बेवा भी हमारे साथ इस टाइम मौजूद है जो कि इद्दत में है, उनसे भी आपकी बात कराते हैं। मोहम्मद आशिक की बेवा मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। आशिक का ये कमरा है, बहुत अच्छे कबड्डी प्लेयर के हवाले से भी अपने गांव में जाने पहचाने जाते हैं और ये 3 बच्चे हैं जो अपने बाप की राह तक रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ था? क्या झगड़ा था दोनों भाइयों का? लड़की लिया सी कट के कुड़ी, वो मेरे बंदे ने पिछा मड़ाई है। ਉਹ ਮੜਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਵੜਿਆ, ਨਹਾਉਣ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢਿਆ, ਉੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੂ। अच्छा, उसी दिन कुड़ी लेके आया सी? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ 4 ਦਿਨ ਇੱਕ ਐਤਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਮਝੋ ਕਿ हौसला करो, सांस लो, हौसला करो तुसी। ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੜਾ ਦਿੱਤੀ ਪਿੱਛੋਂ। ਮੜਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਵੜਿਆ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੂ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਭੈੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਰੋਕਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਰੋਕਦਾ ਹੈਗਾ। अच्छा ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡੋਂ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਰੱਖੀ ਨਾ 2 ਦਿਨ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੜਾ ਦਿੱਤੀ ਪਿਛਾ। ਉਹਨੇ ਹੱਸੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਮੈਂ ਟੁਰਨ ਫਿਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣਾ, ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਉੱਚੇ ਤਲਕਾਤ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਘੱਲ ਦੇਵੋ। ਹੁਣ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਪਿਛਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ।
इवें सुबह उठा माड़ा ही लड़िया बाहर निकल गया बाद मेरा बंदा उठा उन्हें टूब ब्रश की करके वाशरूम वड़िया उतों नहा के बाहर निकलिया बाहर निकलते नगों ने फायरिंग शुरू कर दी उन्होंने समझ ही नहीं आई हैगी। अच्छा हाँ जी ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਿਆਰ ਆ ਵੇਖੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੀ ਨਾ ਪੀਂਦੀ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਰੋਵੇ ਦੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਪਏ ਮੈਂ ਆਪ ਹੋਈ ਪਈ ਹਾਂ जुल्म देना मैं तो खीर कर देती है। आप इधर आओ बेटा मेरे पास आओ आ जाओ पापा मेरे पास तो मैं जाने मैंने इंसाफ मिले। अस्सलाम वालेकुम बेटा क्यों रो रहे हो आप हैं बेटा क्यों क्या नाम है पापा का? आशिक। आप घर पर थे जब इस तरह हुआ था क्या हुआ था बेटा? मेरे पापा आ गए थे मेरे पापा वाशरूम से बोलने लगा बेबी रहते नहीं मिले तो बाहर जाकर आया मेरे पापा ने कहा तो कौन बोलने लगी मैं तो मिस्त्री मैं था काम करना गवा देते हैं लगे अब्बा वेला वेला मैं लड़का पढ़ रहा था बाहर तेनी तू निकल मेरे पापा मैं स्कूल ले गई मेरे पापा ने आके बाहर लेकर थोड़ी निकल जा आशी नानी को आगे फोन आ गया लाशू मार के वेल किता आशिक पापा अच्छा आशिक मेरे पापा मार वेल मैंने मेरे देख दी मंजी ते टकना मारा किसने टकरे मारी? मैंने बेटा अब आप क्या चाहते हो? मेरे पापा लेने हैं। पापा तो अल्लाह के पास चले गए ना। कहाँ रहते हो अब आप? तुसी किदे कोल रहंदे हो? नानी कोल। तो रो क्यों रहे हो हैं? पापा याद आते हैं? क्या मुतालबा है अब आपका? मैनू इंसाफ चाहिए बस मैनू इंसाफ चाहिए मेरे निक्के निक्के बच्चे मैं किधर लेके जावा मेरे दे मैनू बस इंसाफ चाहिए मैं बहुत माड़ी हाँ ये बहुत तगड़े ने इनके तो मेरा बंदा भी ना तो बचता सी पर नहीं बच सकिया मेरे बस मेहनत है मेरे को कोई चीज़ नहीं मैं बना बहुत गरीब हाँ सुना को मेरा मैं भी रहने जारी मेहनत वाले लोग मेरे बच्चों को रोटी देने के ना कैसा तो रूला नहीं गया तो मैंने बस इंसाफ चाहिए। मेरे साथ इस टाइम मौजूद है अरशद अली जो कि मकतूल के 3 बच्चों का मुहाफिज है और इनकी कफालत भी कर रहे हैं। क्या कहते हैं हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अरशद साहब क्या हाल है? ठीक है? हाँ जी ठीक ही है। अरशद साहब कैसे पता चला था? जी हम इधर आए हुए थे मिलने के लिए। हाँ। तो इतने बागो आया गाली गलोच करने लग पाया तो इनके को पिस्टल से इन्हें आके फायरिंग करनी शुरू करती है बनो ये मेरा जो वाशरूम जो बड़ा है वो बाहर निकलता पैसे। आप भी घर पे मौजूद थे? हाँ जी उत्थे ही यहीं भी। नहीं किस बात पे गालम गलोच कर रहा था? भी पहले जरा लड़ते घोलते से ठीक है तो जो नहा के मम्मा ने कहे विच नहीं वड़ना तुसीं ठीक है इस तरीके नाल इस सिलसिले नाल जिहड़ा अगों बदतमीजी करदा सी ठीक है तो दूसरे नंबर ते इन्हें पहले आने गाली करनियां शुरू कीतियां जो गाली कढ़दा पिया उन्हें भी अगों आखे मूँह संभाल के गल कर ठीक है। मकतूल ने कहा? हाँ जी। वॉशरूम के अंदर से या बाहर? नहीं बाहर से जो बाहर निकल आया। अच्छा। लेकिन उन्होंने इस चीज़ का नहीं सी पता भी ये इतों तक जा सकता मेरे नाल वो तो छोटा भाई जिहड़ा दोनों ही पता है आंदरा आंदरा ही होंगे भाई होंगे ने ठीक है लेकिन सानू इस चीज़ का नहीं पता भी इन्हें इतों तक अपड़ जाना जे अगर उन्होंने पता होंगे भी इन्हें इतों तक मैंने पहुँच जाना हो सकता फरार हो जाता या कोई अगों फड़ लेंदा जो कोई मसला बना लेकिन उन्होंने इलम नहीं सी है भी उन्हें काम कर देना मेरे नाल इन्हें गाली गलोच करनी शुरू की है इस वजह तो फिर उन्हें यानी थोड़ा पिछे सी वो थोड़ा अगे गया सी उत्थे पिस्टल कढ़ देना फायरिंग करनी शुरू करती है। ठीक है। हाँ जी ठीक है। अब मकतूल के 3 बच्चे हैं? जी 3 बच्चे छोटे हैं। हाँ जी। आप कफालत कर रहे हैं? हाँ जी हम कह रहे हैं। आपने जिम्मेदारी ली है? हाँ जी। आप कर लेंगे? हाँ जी दादी गल हुण साडी भैन असीं किधर छड्डना है ठीक है हुण जे इन्हां कोल छड्ड दे इन्हां आपदा पुत्तर ने रखिया ते इन्हां नूं किहने संभालना है
ठीक है। हुण मेरा एक निक्का भांजा, ठीक है, 2 भांजियां ने, ठीक है। हुण इत्थों तक कि हुण दसो भी असीं भी माड़े बंदे आ, ठीक है, दिहाड़ी मिहनत वाले आ, ठीक है। हुण असीं चलो जेकर साडे कोल हुण असीं लै ते गए, असीं संभालना इन्हां नूं, ठीक है। हुण ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 3 ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਬੇਵਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਇਹੋ ਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲ, ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਦਿਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਫੜਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗੇ। अच्छा, ठीक है, ठीक है। बेधमकियां लाਉਂਦੇ ਸੀ। मुलजिम ने कभी आपको कोई थ्रेट किया है, तंग किया है? नहीं, मुलजिम ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾत नहीं हुई। ਉਹ जो फायरिंग करके दौड़ गया, वाई फायरिंग करदा बाहर निकल गया, नस गया सी। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी। गांव वालों से बात करते हैं, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या कहेंगे, झगड़ा हो गया, भाई ने भाई को कत्ल कर दिया, कैसा था मोहम्मद आशिक? मैडम जी, झगड़ा हो जाना कोई अलग बात नहीं, झगड़े होते रहते हैं गांव में, घर में, जो भी है। लेकिन बेसिकली जो आशिक था ना जी, बहुत नाइस आदमी, शरीफ आदमी था, कबड्डी प्लेयर जी, कबड्डी प्लेयर भी था वो, तो हमारे साथ खेलता रहा है, तो अच्छा आदमी था, उसकी कोई कंप्लेन नहीं है अभी तक भी। कोई गांव में मोहल्ले में होता है ना जी, वो आवारागर्द किस्म का लड़का नहीं था। बेसिकली अच्छा आदमी था, शरीफ आदमी था। उसके साथ ज़्यादती की है, उसके बच्चों के बीवी के साथ जो है ना बहुत ज़्यादती की है इन्होंने। जिसने कत्ल किया है वो हाँ, कैसा है? वो तो करप्ट ही है जी। अगर वो अच्छा होता तो फिर कत्ल करता ही क्यों? नहीं, कैसा उठना बैठना कैसा था उसका गांव में? उसको आवारा किस्म का बंदा है जी, रीफ किस्म का इंसान नहीं है। लोगों उसने को तंग करता था? हाँ जी, वो गांव मोहल्ले में यही कोई लड़ाई झगड़ा आगे भी हुआ था, कोई एक आगे भी हो ऐसे ही कि करता है हाँ जी, हमेशा? कंप्लेन उसकी आगे भी थी कोई, क्या कंप्लेन के कोई झगड़ता है? कोई झगड़े की, कोई लड़की की भी कोई कंप्लेन थी। किसी लड़की को ले आया था? हाँ जी, फिर तो उसके चक्कर में पता नहीं, हमने तो फिर उसका नहीं तहकीक की क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन वो बेसिकली जो ना अच्छा आदमी नहीं था जी। ये मैं पुलिस या कोई और नहीं कह रहा, ये गांव वाले कह रहे हैं कि कौन कैसा था, उसका कैरेक्टर बयान किया जा रहा है। मुलजिम की जानिब चलते हैं और मुलजिम से बात करते हैं। क्या नाम है पूरा? रियासत अली। रियासत अली। हाँ। रियासत कितनी उम्र है? 18.5 साल। 18.5 साल जी। ऊंची आवाज में बात करो। 18.5 साल। क्या करते हो? खेती बाड़ी का काम करता हूँ जी। खेती बाड़ी का काम करते हो। मोहल्ले में रेपुटेशन कैसी है? जी ठीक ही है। हाँ, ठीक है जी। कैसे ठीक है, किसे कहते हैं ठीक? जी जो हमसाए हैं उनके साथ ताल्लुक वगैरह। हाँ, जी ठीक है, सबके तारीफ साथ। करते हैं तुम्हारी, बुराई करते हैं? जी तारीफ ही करते हैं, तारीफ अब्बू करते के हैं? साथ ही रहता हूँ मैं तो इसीलिए। अब्बू के साथ ही रहते हो? हाँ जी। तारीफ करते हैं, बुराइयां करते हैं? जी मोहल्ले बुराइयां वाले तो तो नहीं कहते हैं करते। बड़ा बुरा आदमी है, ये बड़ा तंग करता है, गालम गलोच करता है, पिस्टल लगा के फिरता है, लोगों की लड़कियों को छेड़ता है। करते हो ये काम? नहीं जी, मैंने आज तक किसी को गाली नहीं दी अपने बाजार में। गाली कोई कभी नहीं दी? नहीं। पिस्टल कभी नहीं देखी? नहीं जी, वो तो मैंने 1-2 दफ़ा देखी है, एक पकड़ी दो भी दफा है। हाँ देखी जी, है? पकड़ी भी है जी। पकड़ी भी है? किसकी लेके पकड़ी है? जी वो 1 दफ़ा चाचू की थी, तो 1 दफ़ा भाई की थी। अच्छा, किया क्या है उस दिन, क्या हुआ था? जी उस दिन लड़ाई हुई थी घर में काफ़ी ज़्यादा। किससे? अब्बू के साथ हुई थी पहले सुबह सुबह, किसकी? भाई की। अच्छा, तो उसके आशिक बाद की? जी मोहम्मद आशिक की? जी, अच्छा, तो मैं खेत से आया था, तो वो हमारा जो दरवाज़ा ना बड़ा, वो भी उखाड़ रहे थे और नलका भी। अच्छा, तो मैं खेत से आऊँ तो मैंने उन्हें कहा कि ये ना करो, अगर तुमने अपना जो चीज़ें लेनी है तो हम आपको पैसे दे देंगे। जो मेरा बड़ा भाई है ना वारिस, उसने भी यही कहा था कि अगर आपने पैसे लेने तो पैसे ले लो। वारिस बीच में रहता है? नहीं जी, वो थोड़ा सा दूर रहते हैं। थोड़ा सा दूर रहता है? जी। वो फौरन घर पे पहुंच गया? वो जब झगड़ा तकरीबन हुआ फौरन पहुंच गया? वो सुबह सुबह ना आता अम्मी अब्बू को मिलने, अच्छा, तो वो घर में ही था। अच्छा, उसने भी यही बात अम्मी की अब्बू को थी। मिलने आता है? हाँ जी। इसका मतलब अच्छा है, अच्छा हाँ, आदमी है। हाँ। अच्छा, फिर? तो वो कह रहा था, तो भाई कह रहा था कि नहीं, जो मैंने लगवाया ना वो मैंने अपना वापस कर लेना है। तो इसलिए मैं आऊँ तो भाई को कहा, तो वो झगड़ने लग गया, कह रहा कि मैंने बात कर ली है भाई से, तो आपने मुझे कुछ भी नहीं कहना है।
तो इस बात से हम झगड़ने लग गए हैं। तो पहले वैसे यानी कि एक दूसरे को मारा उठा, तो उसके बाद भाई पिस्तौल लेकर आगे नलके के पास रख दिया। तो कह रहा था अगर अब आपने मुझे कुछ कहा ना तो आपको मार दूंगा। उस वजह से फिर झगड़ा हो गया। माँ बाप घर पर थे? अम्मी जान थी, वो घर लेटी हुई थी अंदर। अम्मी घर लेटी हुई थी। और अब्बू बाहर गए हुए थे। अब्बू बाहर थे। झगड़ा किससे हो रहा था फिर? भाई से। किसका? मेरा। तुम तो कह रहे हो मैं बाद में आया हूँ। वो सुबह पहले की बात बता रहा हूँ ना आपको, भाई के साथ झगड़ा हुआ था। हाँ। अब्बू का काफ़ी ज़्यादा। मैं खेत से आया हूँ ना, तो अब्बू बाइट थे, भाई जो है ना दरवाज़ा पहले उसने उखाड़ा, फिर नलके के साथ लगे हुए थे। अकेले बंदे ने दरवाज़ा उखाड़ लिया? जी वो आप कहीं से भी हमारे गांव में जाकर पूछ लें, वो आपको बता देंगे। गांव वालों ने बड़ा कुछ बताया। हाँ जी। आगे? तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा झगड़ा होने लग गया हम दोनों में। मना नहीं किया भाई को कि भाई ना करो? जी झगड़ा वो इसीलिए मैंने सुबह कहा था जाते ही उन्हें कि भाई अगर आपने पैसे लेने तो पैसे ले लो, तो ऐसे ना करो। तो वो ऊपर से झगड़ने लग गया था, काफ़ी ज़्यादा हमारा झगड़ा हुआ था। तो उसके बाद फिर वो पिस्तौल लेकर उसने पास रख लिया। कह रहा था अगर अब आपने मुझे कुछ कहा ना तो मैंने आपको मार देना। तो इसी बात से हम फिर झगड़ने लग गए। मारा उसको? कुछ नहीं कहा? जी मैंने मारा था। किसको मारा? भाई को। क्या मारा? जी वो पिस्तौल ही पड़ा हुआ था उसके पास ही। अच्छा, कहाँ पड़ा हुआ था पिस्तौल? उसके पास पड़ा हुआ था, थोड़ा सा दूर। कहाँ? करीबन थोड़ा सा दूर था। हवा में, जमीन में, टेबल पे? नीचे पड़ा हुआ था। नीचे पड़ा हुआ था। नीचे कहाँ? बाथरूम के पास जो टैंकी है ना, उसके ऊपर रखा हुआ था। जमीन पे पड़ा हुआ था? हाँ। नहीं, टैंकी के ऊपर पड़ा हुआ था। टैंकी के ऊपर पड़ा था। पिस्तौल वो अंदर से निकाल के लाया तुम्हें मारने के लिए? नहीं जी, उसने टैंकी के ऊपर रख दिया? मारने के लिए नहीं लेकर आया था। किस लिए लाया था? लेकर आया था और वहाँ रख दिया था। कह रहा था अगर अब आपने मुझे कुछ कहा ना तो अपना हिसाब लगा लेना। ठीक है, फिर? तो वो मैंने पकड़ लिया था। अच्छा, फिर? हाँ जी। फिर झगड़ने लग गए। झगड़ते झगड़ते वो मुझसे चला। क्या हुआ? वो मुझसे ही चला था। क्या चला? पिस्तौल। कितनी गोलियां मारी हैं भाई को? तकरीबन 2-3 थी बीच में। किसने चलाना सिखाई बंदूक? जी वो मैंने पहली दफ़ा चलाया था। पहली दफा एग्जैक्ट निशाने पे मारा फायर? जी वो पास ही खड़े हुए थे बिल्कुल। अपने ऊपर गोली नहीं चली? हाथ नहीं कांपे पिस्टल पकड़े हुए? क्योंकि पहली दफा पकड़ी थी ना। जी। हाथ नहीं कांपा? फायर तुम्हें खुद को क्यों नहीं लग गया? डायरेक्ट छाती पे कैसे मार दिया भाई की? छाती पे मारा है ना फायर? जी। कितने मारे? तकरीबन 2-3 थे। 2-3 फायर मारे। फिर उसके बाद वो गिर गया था। सेहत में तुमसे तगड़ा था भाई? जी। अच्छा, तुम्हें पकड़ नहीं सका? जी। हाँ, पिस्टल भी उसका था? जब वो नीचे गिरा था ना, हाँ। तो मैंने उसे पकड़ा तो अम्मी ना चीखें मार रही थी, वो आ गई। तो इस वजह से मैं डर कर बाहर चला गया था। डर किससे गए तुम? वो भाई की वजह से। भाई से डर गए? जी नहीं, जब वो गिरा था ना नीचे तो इसलिए। अच्छा, फिर? तो फिर शाम को भाई जो है ना वो उनसे रब्ता किया था मैंने। फिर भाई नीचे गिर गया, तुम्हें डर लग गया, गोली चलाते हुए तुम्हें डर नहीं लगा? ये राम कहानी किसी और को सुनाना। ये जो राम कहानी सुना रहे हो ना मुझे घड़ के, ये राम कहानी नहीं है। जो हकीकत है वो सुनाओ। पिस्टल से तुमने फायर किए, तुम्हें डर नहीं लगा? जब भाई गिर गया नीचे तड़फने लग गया, तुम्हें डर लगने लग गया, फिर तुम भाग गए वहां से? हाँ जी। भाई को डॉक्टर के क्यों नहीं लेके गए अगर गलती से चला था? मैंने उन्हें पकड़ा था तो मम्मा आ गई थी, वो चीखें मारने लग गई, तो इस वजह से मैं भी डर गया था। पहली दफा माँ को देखा था? नहीं जी। माँ का चेहरा पहली दफा देखा था? वो माँ ने पहली दफा भाई को देखा ना, वो घबरा गई थी, तो इसी वजह से फिर मैं भी घबरा के बाहर चला गया था। कहाँ बाहर? बाहर खेतों में चला गया। कहाँ छुपते रहे हो? जी खेतों में गया था। फिर शाम को भाई से रब्ता किया मैंने बड़े से, तो वो कह रहा था कि मैं आपको लेकर आता हूँ। मैं घर आया तो वो झगड़ने लग गए थे, तो फिर हम इधर आ गए। खाना कौन खेतों में पहुँचाता था तुम्हें? जी मैं एक रात रहा हूँ बाहर। मैंने सवाल क्या किया? जी बाहर मैंने कुछ भी नहीं खाया, ना किसी को पता था कि मैं खेतों में कौन देने आता था, माँ या बहन? जी उनको पता नहीं था। मैंने भाई को शाम को कॉल की थी कि मैं यहाँ पर हूँ। भाई देने आता था? तो वो मुझे लेकर आए थे। एक रात मैंने कुछ नहीं खाया था, सुबह मैंने बताया ना तो वो मुझे लेकर आ गए थे घर। लड़की का क्या मामला है? जो ऐड चलवाते हैं ना टीवी पर, हाँ। अपना ईद की, वो ऐड चला, ईद मुबारक की जो ऐड चलती हैं टीवी पर, वो चलवाई थी। तो इस वजह से ना वो किसने चलवाई थी? जी वो हम काफ़ी लड़के होते हैं अक्सर अब कौन सी ईद है जिसकी ईद मुबारक चलवा रहे थे तुम? जी अभी नहीं, वो पीछे यानी साल की बात है। अच्छा, फिर? तो वहाँ पर नंबर जो हर लड़के का होता है। अच्छा। तो वहाँ से उसने कॉल की थी, वहाँ से रब्ता हुआ था उनसे। क्या कहा था? तो वो कहती थी कि मैं आपको लाइक करती हूँ, आपसे शादी करना चाहती हूँ। हाँ, तुम शाहरुख खान हो ना, तुमसे शादी करना चाहती है। उनसे वीडियो पर बात हुई थी। तुमसे शादी करना चाहती, खूबसूरत बहुत ज्यादा हो। हाँ, फिर? तो वहाँ से बात हुई थी, फिर वो व्हाट्सएप पर बात हुई थी, तो वो हमारे गांव आ गई थी।
तो उसके पीछे अच्छा, उसके वो तुम्हारे भाई। पीछे गांव आ गई, उसने खुद ही तुम्हें कॉल भी कर ली, गांव भी तुम्हारे पीछे आ गई, तुम्हें कुछ नहीं पता? नहीं जी, मुझे पता था, मुझे बताया था उसने कि मैंने आना। अच्छा। कितनी देर गपशप होती रही है? तकरीबन 2-3 माह हुई थी। 2-3 माह गपशप होती रही है, फिर उसके बाद क्या हुआ? तो फिर वो जब यहाँ पर आई थी ना, तो उसके घर वाले भी आ गए थे पीछे पुलिस वालों को लेकर। तो उन्होंने बताया था कि ये वहाँ से इसे ना भगा कर लेकर आया। तो मैंने भाइयों से रब्ता किया था। किसके भाइयों से? अपने भाइयों से। तो फिर हमने यहाँ कर जो निकाह कर लिया था। तो उसके बाद उसके भाई जो घर वाले थे ना, वो कहते थे निकाह कर लिया था जी। अच्छा। भाई साथ ही थे, तो वो कह रहे, उसके घर वाले कह रहे थे कि हमने जो ना लड़की को वापस लेकर जाना, यहाँ नहीं रखना। तो इस वजह से फिर वो वापस ले गए थे। फिर जी उसके बाद फिर रब्ता नहीं हुआ। अच्छा, तुमने किसी की लड़की घर से भगाई है? जी मैंने नहीं भगाई, वो खुद आई थी। खुद आ गई थी? जी। नहीं, मुझे कोई मेरे घर वालों को भी पता है। खसूसियत बताओ मुझे, तुम्हारे अंदर कौन सी खसूसियत है कि लड़की भाग के आ गई? कहाँ से आई थी? जब वो आई थी तो मैंने अपने भाई से रब्ता किया था। वापस कर देनी थी। तो अगर वो ही मरी जा रही थी तुम्हारे ऊपर तो तुम वापस कर देते भाई। वो उसके घर वाले आ गए थे ना, वापस कर देते ना। निकाह क्यों किया? अब पता नहीं किया भी है कि झूठ बोल रहे हो? जी किया, वो घर पड़े हुए हैं कागजात जो है ना। अच्छा, निकाह में वो पड़े हुए कर हैं देते घर। तुम्हारे पीछे जो आ गई थी। तो वो बाद में उन्होंने कहा कि वापस लेकर जाएंगे, तो वापस कर इंसान हो ना, किसी की लड़की घर से भगाती? नहीं जी। हाँ नहीं जी। सके भाई को फायर मार दिया, किसी की लड़की घर से भगा ली, माँ बाप को गालम गलोच कर ली, मोहल्ले में बदमाशी कर ली, ये क्या है? जी मैंने बदमाशी आज तक नहीं की। आपका मोहल्ला आपकी गवाहियां बहुत अच्छी दे रहा है, मैं सुनकर आई हूँ। कोई एक होगा जिससे लड़ाई होती होगी, पूरे मोहल्ले से, पूरे गांव से लड़ाई है तुम्हारी? जी मैं अपने पापा के साथ ही होता हूँ, तो मैंने आज तक किसी को गाली नहीं दी है। नहीं जी। फिर क्या हो? 18.5 साल तुम्हारी उम्र है, हरकतें अपनी तुम देखो किधर को जा रही हैं, जा चुकी हैं, कातिल बन चुके तुम 18.5 साल की उम्र में। लोगों की बहनों को घरों से भगाने का क्या दुख है? इस बात से मोहम्मद आशिक मना करता था कि गलत काम ना करो। नहीं जी, उनसे तकरीबन भाभी को भी पता है, तकरीबन शुरू से ना 4-5 साल से वो अच्छे तरीके से नहीं बुलाता था। क्यों नहीं बुलाता था? तो अच्छी तरह मैं स्कूल मना जाता करता था ना गलत कामों से? मैं स्कूल मना जाता करता था ना गलत कामों से? जी। हाँ जी बिल्कुल आपकी करता था। भाभी ने बताया है कि आप किसी की लड़की ले आए हैं, उसने कहा वापस कर दो, तुमने वो बात दिल में बिठा ली और तुमने उसके साथ खैरबाजी शुरू कर दी। जी उस बात से भाई ने मुझे कुछ नहीं कहा था। उसने कहा था अगर आपने ये काम करना था तो हमें बता देते, हम उनके घर वालों से बात कर तो लेते। इज्जतदार तरीका तो यही है ना भाई, अगर कोई लड़की पसंद आ गई है, इज्जत से उसके घर जाओ, उसका रिश्ता मांगो, ना कि भगा लो घर से। तो यही इज्जतदार बात तरीका बताया ना भाई ने। तुमने कहा चलो जी इसको साइड पे करो। नहीं जी, उसने समझाया। तो फिर उसके बाद करीबन ना 1-2 हफ्ते जो हम एक दूसरे को बुलाने लग गए थे अच्छी तरीके से। तो फिर भाभी की और मामा की लड़ाई हुई थी, तो इस वजह से फिर वो लैदा हो गए थे, हम लैदा हो गए थे। भाई को तो मार दिया, भाभी को बेवा कर दिया, जिंदगी बर्बाद। वो 3 बच्चे, उनको कौन कमा के खिलाएगा? जी वो प्यार तो नहीं हम दे सकते, लेकिन जितना होगा मैं करूँगा उनके लिए। अच्छा जी। तुम्हें मार के तुम्हारी बीवी को ना बेवा करें, कोई और उसका भी वारिस बन जाएगा, जैसे तुम किसी के वारिस बनने को खड़े हो गए हो। बताओ, तुम्हें कोई मार दे, फिर जिंदगी मकाफाते अमल है, जो करोगे वो काटोगे। जी बिल्कुल। फिर किसी की जान ली है ना, जी फिर तुम्हारी बची रहेगी? नहीं जी। फिर मुझे जवाब दो, उन बच्चों का क्या कसूर है? छोटे छोटे बच्चे बाप की कब्र पे बैठ के रोते हैं, क्या कसूर है? जी ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, उनका तो कोई कसूर नहीं है। पुलिस इस हवाले से क्या कहती है, उनसे बात करते हैं। सैयद सकलैन बुखारी साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं, जो कि थाना सिटी पत्तोकी में एज अ SHO अपनी जिम्मेदारियों को सरअंजाम दे रहे हैं। इस केस के हवाले से डिटेल्स हम जानते हैं सकलैन बुखारी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बुखारी साहब, कॉल आई थी, मामला शुरू कहाँ से हुआ था, पुलिस तक खबर कैसे पहुंची? ये 15 की कॉल आई थी कि एक भाई ने दूसरे भाई को फायर मार दिया।
फौरी तौर पे हमने वहाँ पे मौके पे पहुँचे, जब देखा तो 3 पुलिस लगी हुई थी। हम उसे लेके हॉस्पिटल आ गए। ड्यूरिंग एम्बुलेंस आपके जाने से पहले पहुंच चुकी थी? एम्बुलेंस नहीं पहुंची थी, हम लोग ही पहुंचे थे। आप लोग पहुंचे थे, ठीक है। वहाँ से फिर हमने हॉस्पिटल शिफ्ट किया। ड्यूरिंग शिफ्टिंग ही उसकी डेथ हो चुकी थी। जब आप लोगों ने जाकर देखा तो क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स थे, क्या डिटेल्स थी उस टाइम वो कुएं की? कौन कौन मौजूद था कुएं में? उसका एक साला था जी, और उसकी वाइफ थी, और मोहल्ले के लोग काफ़ी सारे इकट्ठे हो चुके थे। उसके बाद हुजूम लग गया था। ठीक है। जिसको गोलियां मारी गई थी, कितनी गोलियां मारी गई? उसको 3 गोलियां लगी थी, लेकिन वहाँ से 4 खौल मिले, एक खौल बाहर से मिला। ठीक है। जाते हुए उसने फिर फायर किया था, मेरा ख्याल है। बिल्कुल ठीक है। अब आप लोग लेकर उसको जख्मी को हॉस्पिटल आए, रास्ते में जाम हक हो गया, फिर उसके बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की? हमने फौरी तौर पे स्टेटमेंट ली उसकी वाइफ की, स्टेटमेंट पे FIR की। उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम पे जब काज ऑफ डेथ का पता चल गया कि ये सीवियर इंजरीज थी और वाइटल ऑर्गन्स जो थे वो सारे डैमेज हो चुके थे। अच्छा। और जिसकी वजह से इसकी डेथ हो गई है। उसके बाद फिर हमने इसके पीछे रेस वगैरह शुरू किए, तो ये स्किप कर गया, भाग गया था। कितने दिन बाद गिरफ्तार हुआ है? ये कोई 20-22 दिन के बाद। 20-22 दिन के बाद गिरफ्तार हुआ। ये बताइए कहाँ से गिरफ्तार किया था? इसको हमने मंडा वाले से गिरफ्तार किया, गाँव मंडिया वाला। वहाँ पे ये छुप गया था जाके, और फिर हमने इसको ट्रेस किया। ठीक है। ये बताइए बुखारी साहब के हम किसी भी केस को जब डिटेल से रीड करते हैं एज अ पुलिस ऑफिसर, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप हर केस में देखते हैं कि कोई ना कोई ऐसी वजह ज़रूर होती है जो वजह अनात बन जाती है। इस केस की जब हम बात करते हैं तो उसमें वजह अनात क्या है? वजह अनात देखिए, शुरू से ही ये ज़ार ज़मीन जन की वजह से इन तीनों में से कुछ ना कुछ होता है। इसमें जो मेन बोन ऑफ कंटेंशन थी वो जन थी। ठीक है। ये एक आवारा लड़का था रियासत, ये किसी की लड़की लेके भाग गया था, जिसकी वजह से आपस में दोनों भाइयों में क्लैश हुआ। ठीक है। इस क्लैश का एंड इस पे हुआ कि वो उसने शूट कर दिया इसको। ठीक है। अपने जिस भाई को शूट किया है, इस भाई के साथ डायरेक्ट कोई झगड़ा, कोई पैसों का, कोई जायदाद का, या किसी किस्म का घरेलू मसला? नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं था। मसला सिर्फ इसके जो करैक्टर था, लूज करैक्टर था, ये वो रोकता था। चूँकि उसके अपने 3 बच्चे थे, ठीक है, वाइफ थी, वो यही कह रहा था कि घर का माहौल ख़राब हो रहा है। ठीक है। खुद मजदूरी पेशा था, वो सारा दिन मजदूरी करता था, जब रात को आता था तो ये बातें सुनता था। इस वजह से इनकी आपस में कन्फ्लिक्शन स्टार्ट हो गई थी। शुरू से यही मामला? मकतूल जो है उसकी पसंद की शादी है, ज़बरदस्ती की है, या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज है, मकतूल की मैरिज है। बिल्कुल ठीक है। ये बताइएगा कि मोहल्ले वालों का मुल्जिम के हवाले से क्या कहना है? तमाम का पुलिस तो इन्वेस्टिगेट करती है ना इन तमाम चीज़ों को। जी जी। तमाम का एक ही नुक्ता नज़र था कि ये जो है ना कातिल, ये आवारा और उसका करैक्टर अच्छा नहीं है। ठीक है। आए गए पे बुरी नज़र रखता है, पूरा गांव तंग है मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये अपने गांव का बदमाश माना जाता है, लोग इससे डरते हैं। ज़ाहिर जो पिस्टल लेके फिरता है और जिसे ये भी एहसास नहीं है कि मैं अपने खून को बहा रहा हूँ, तो वो बदमाश ही होगा ना। ठीक है। ये बताइए कि आले कत्ल बरामद कर लिया? जी, आले कत्ल बरामद कर लिया। आपने तहकीक की, आपने मुल्जिम से यकीनन इन्वेस्टिगेट किया, सवाल जवाब किए, काउंटर क्वेश्चंस किए ताकि मज़ीद हक़ाइक़ सामने आए। कुछ नया आपको नज़र आया इस मुल्जिम में? कोई ऐसी बात जो हमने इससे पहले किसी स्टोरी में ना देखी हो? क्योंकि आप लोग जब भी मुल्जिम को ब्रेक करते हैं, जो आईओ होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है, उसको सब मालूम होता है। तो इस केस के हवाले से क्या शवाहिद या हक़ाइक़ सामने आए? इस केस में ना ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बिल्कुल सीधा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा केस है, और तमाम जो बातें हमसे पूछना चाहते थे इसने बता दी सही सही। और ये बात को घुमा के तो करता है, कोई और वजह बनाने की कोशिश करता ताकि ये एस्केप कर जाए, लेकिन जो असल रीज़न वो यही थी कि वो इसको रोकता था कि गंदे लोगों के साथ ना बैठो, औरतों में बुरी नज़र ना रखो, किसी की इज़्ज़त को अपनी इज़्ज़त समझो। ये इस बात को ये जो कातिल है ये बुरा महसूस करता था। इसी बात पे सुबह वो काम पे जाने के लिए नहा रहा था, इसने शूट कर दिया उसको। अच्छा, ये बताइए आपने मुल्जिम का CRO चेक किया? जी किया चेक। CRO में कुछ आया है, इसके डिटेल्स आई हैं पुरानी साहब का? नहीं, इससे पहले इसका अदम रिकॉर्ड है, कोई ऐसा नहीं है, ये पहला पर्चा है इसके? पहला पर्चा। अच्छा सकलैन बुखारी साहब, आपने बताया कि मुल्जिम जो है वो घर में घुसा है भाभी के और आकर वहाँ पर अपने ही भाई को इसने शूट कर दिया।
फायर मार दिए वॉशरूम में। वॉशरूम में आप फायर तब कर सकते हैं जब दरवाज़ा खुला होगा या कोई ऐसा सिनेरियो होगा। गांव के घरों की हम जब बात करते हैं तो उनका रहन सहन और चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होती हैं शहर से, उस पर ज़रा क्लैरिफिकेशन से बताएं। ऐसे कि गरीब घर है जी, प्रॉपर वॉशरूम नहीं है, बगैर दरवाजे के वॉशरूम है। ठीक है, इसलिए वो नहा रहा था तो उसने पर्दा पीछे किया और शूट कर दिया उसको। थैंक यू वेरी मच। कब्रिस्तान में हम आ गए हैं जहां पर मोहम्मद आशिक की कब्र है और छोटे मासूम बच्चे आशिक के 24 घंटों में से 10 से 12 घंटे अपने बाप की कब्र पर बैठे रहते हैं। चलते हैं फातिह खानी करते हैं। ये मासूम बच्चा जिसकी आप आवाज़ सुन रहे हैं, ये बिलक बिलक कर रो रहा है अपने बाप के लिए, पापा उठो, सिर्फ और सिर्फ ये बोल रहा है। घरों में नाचाकियां, झगड़े और भाई ने भाई को गुसल खाने में घुसकर कत्ल कर दिया, गोलियों से छलनी कर दिया। आखिर ऐसी भी क्या नाराजगी और क्या दुश्मनी थी? मोहम्मद आशिक अपने भाई को अच्छे कामों के लिए कहता था और बुरे कामों से रोकता था। इस गुनाह पर उसको कत्ल किया गया है और वो इस कब्र में सोया हुआ है। बच्चे रो रहे हैं और इंसाफ के मुंतज़िर हैं। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।